हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वेज। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम के बारे में। हमने देखा कि कैसे मोमेंटम जो होता है वह दो फैक्टर्स मास और वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होता है। ये हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको सिंगल लेना है, तो जनरली सिंगल लेने के लिए आपको बहुत तेज़ी से हिट करने की ज़रूरत नहीं होती है बॉल को। तो आप क्या करते हैं, आप बॉल को टैप कर देते हैं। जब आप बॉल को टैप कर देते हैं तो क्या होता है, टैप करते हैं तो बॉल थोड़ी आसपास चली जाती है। ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस होता है जब आप बॉल को टैप करते हैं? जब आप बॉल को टैप करते हैं तो आप एक्चुअली कम फोर्स लगाते होते हैं। अच्छा, जब आप कम फोर्स लगाते होते हैं तो उस समय होता क्या है? उस समय होता ये है कि जो बॉल आ रही है वो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाती और बहुत तेज़ी से नहीं जाती। कहने का मतलब यह है कि बॉल की वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। ओके, देयर इज़ नॉट मच चेंज इन दी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और when we say that velocity is not changing much, it means that the momentum is also not changing much. So question arises that momentum, if it is changing, see, when we tap the ball, what happens that we actually apply a lesser force, and when we apply a lesser force, there is lesser change in the momentum of the object takes place. Okay, clear? Now the question comes that when we apply a lesser force, lesser change in the momentum takes place. But suppose that there is one ball and you want 6 runs. So what? There is no option, you have to smash the ball. Okay, so when you want to smash the ball, you will smash it hard, you will apply a great force, correct or not? Because there is no choice, so you will apply a great force. And when you apply a great force, you will see that there will be greater change in the velocity, and in return there will be greater change in the momentum of the object. कहने का मतलब यह है कि जब आप कम फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम जो होता है वह, उसमें जो रेट ऑफ चेंज होता है वह कम होता है। लेकिन जब आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो जो रेट ऑफ चेंज होता है मोमेंटम में वह ज़्यादा होता है। सो द पॉइंट इज फोर्स डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज आया है ना, वह डिपेंड कर रहा है फोर्स पर। अगर आप फोर्स लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से जो है क्या होगा, मोमेंटम में परिवर्तन आएगा, और अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज होगा वह कम होगा। कहने का मतलब यह है कि जो फोर्स अप्लाइड होता है, इट इज़ directly proportional to rate of change of momentum, and this is what is second law of motion. So what is second law of motion? If we try to state the second law of motion, so second law of motion, it states that force applied on any object is directly proportional to rate of change of momentum. Directly proportional to rate of change of momentum. Force applied on any object is directly proportional to rate of change of momentum. So this is what is statement. Okay, this is the statement of second law. What does it mean? It means that if you apply a lesser force, there will be lesser change in the momentum. If you apply a greater force, there will be greater change in the momentum. आपको सिंपल सी बात बताता हूँ मैं। अगर आप जो है एक नेल को इंसर्ट करना चाहते हैं वॉल में, तो आप क्या करेंगे? आप उस पर फोर्स लगाएंगे। तो आप क्या ऐसे फोर्स लगाएंगे? ऐसे धीरे धीरे ऐसे लगाएंगे तो उसके मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा ही नहीं, तो वो इंसर्ट ही नहीं होगी। लेकिन आपको उसको हैमर करना होगा, उसको फोर्स लगाना होगा तबीयत से, है ना। यू हैव टू अप्लाई अ ग्रेट फोर्स. So when you apply a great force, what happens that because of the great force which you apply, there will be greater change in the momentum. Okay, so the point is, if you want to get a greater change in the momentum, you need to apply a greater force.
Okay, so that's why force is directly proportional to rate of change of momentum. Okay, acha, so you can also write it like this, that the force is proportional to rate of change of momentum. What does it mean? It means that change in momentum divided by time. Change in momentum divided by time taken. Okay, change in momentum divided by time taken. So this is what is called rate of change of momentum. This is what is rate of change of momentum. Okay, now you can this is the statement. If someone asks you this statement, this is the statement of Newton's second law of motion. Now the question comes that if this is the statement of the Newton's second law of motion, is there any mathematical form of it? So if in case in exam, if it is asked that what is the mathematical form of second law, so here comes the mathematical form of second law of motion for you. Okay, so you see statement, you know the statement, so you can first write that according to the statement of second law, we know that force is directly proportional to rate of change of momentum. Okay, according to the statement of second law, you can write force is directly proportional to rate of change of momentum. So you can write force is directly proportional to change in momentum, rate of change of momentum, that is change in momentum divided by time taken. Change in momentum divided by time taken. ओके, अब एक बात आप ध्यान से समझिए, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ. देखिए, आप कंसिडर कर लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है. देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ मास स्मॉल m. ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट है यह u वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ओके, जैसे कि एक साइकिल जा रही है u वेलोसिटी से. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपने इस पर फोर्स लगाया. जैसे कि एक बॉल जा रही है और आपने उस पर फोर्स लगाया. हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी खेलते समय बॉल जा रही है और आपने स्टिक से उसको मार दिया. तो जब आपने फोर्स लगाया, सो डेफिनेटली फोर्स लगाने के कारण जो होता है ना, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाता है. तो क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा. अब इसमें जब ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन के कारण क्या होता है, वेलोसिटी जो है वह चेंज हो जाती है. इफ एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस देन बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी चेंजेस. तो मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है u से क्या हो जाती है, v हो जाती है. लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स v, फ्रॉम u इट बिकम्स v. ओके, अच्छा ठीक है, और ये जो चेंज आता है वह क्या आता है, टाइम t सेकेंड में आता है. ओके, दिस चेंज अकर्स एट t सेकेंड. ओके, इन t सेकेंड. तो t सेकेंड में ये जो है परिवर्तन क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट में होता है. सो दिस चेंज इज टेकिंग प्लेस इन t सेकेंड्स, इन टाइम t सेकेंड्स. ओके, तो ये जो चेंज आ रहा है यह t सेकेंड्स में आ रहा है. ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद में आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा ऑब्जेक्ट का, सो इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरी इजीली यू कैन राइट इनिशियल मोमेंटम, मतलब शुरुआत में क्या मोमेंटम था. तो आप इसको p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, तो आप लिख सकते हैं p इनिशियल. और वो क्या होता है बच्चों, p इनिशियल हो जाएगा. देखिए, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, सो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज u. सो u कैन राइट m इंटू यू, है ना. आप क्या लिख सकते हैं, m इंटू यू लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. अब बात आती है कि भाई इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. तो आप लिख सकते हैं p फाइनल, क्या लिख सकते हैं, p फाइनल. और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, m इंटू वी. क्यों, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी. मास तो m है और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम जब फाइनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए. सो ये m इंटू वी हो जाएगी. अब बात आती है चेंज इन मोमेंटम. अच्छा, चेंज इन मोमेंट, चेंज कैसे निकालते हो आप. अभी क्या है माइनस, पहले क्या था, यही तो चेंज होता है, परिवर्तन ऐसे ही तो निकालते हैं. तो अब देखिए, आप स्टेटमेंट पे वापस आइए और ध्यान दीजिए. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा p फाइनल मोमेंटम
माइनस P initial, that is the initial momentum. Final momentum minus initial momentum divided by time, ठीक है, P final minus P initial divided by time. क्लियर है इतना? आ गई बात समझ में? अब आप क्या कर सकते हैं, आप इन वैल्यूज़ को जो आपके पास में हैं इन्हें क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़. ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम इसका सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, P फाइनल माइनस P इनिशियल हमने कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं. तो आइए इनकी वैल्यूज़ हम रख देते हैं. ठीक है, अब ये जो है ये इसकी ज़रूरत हमें नहीं है और हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट की भी. ठीक है, अब हम देखिए इनकी वैल्यूज़ जब रखते हैं तो क्या होता है. तो देखिए हम रखेंगे फोर्स F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम. क्या है बच्चों, फाइनल मोमेंटम है mv, तो आप लिख सकते हैं mv माइनस आप लिख सकते हैं p इनिशियल, दैट इज m इंटू यू. ठीक है, और कितने टाइम में ये सारी घटनाएं हो गई, ये टाइम लगा t, स्मॉल t टाइम में यह सारी घटनाएं हो गई. ठीक है, अब आप लिख सकते हैं f इज प्रोपोर्शनल टू, आप m कॉमन ले लीजिए बच्चों, m कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी. क्या आएगा, है ना, m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी आ जाएगा. ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. केवल v माइनस यू के ही क्या करेंगे, अपॉन में हम दे सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये कोई मैथमेटिक्स का कोई भी क्या कहते हैं रूल का हमने वायलेशन नहीं किया है यहाँ पर. ठीक, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, इसके बाद की स्टेप में लिख रहा हूँ, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू. अब ध्यान से देखो बच्चों, m इंटू मैंने लिख दिया a, क्या लिख दिया a, और क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी. क्या होता है एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी होता है. सो आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ v माइनस यू अपॉन टी, ये जो लिखा हुआ है इसके प्लेस पे वी कैन राइट a. व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट a. नेक्स्ट f इज प्रोपोर्शनल टू m into a. whenever you remove proportionality sign, sorry, whenever we remove proportionality sign, there comes a constant, एक constant आता है, इसे कहते हैं proportionality constant. तो ये proportionality constant जो है वह k है. क्या है यहाँ पर, k है. तो ये आ जाएगा f इक्वल्स टू k ma. k इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ठीक है, हमेशा आपने पढ़ा है 7th 8th स्टैंडर्ड में भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में आप जानते हैं. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ओके, तो k जो है वह SI यूनिट में, SI यूनिट जो होती हैं, इन SI यूनिट k की वैल्यू जो है वह क्या होती है, 1 होती है. तो f जो है वह m इंटू a के इक्वल हो जाएगा. फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. और याद रखिए कि ये जो है यह मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ है. याद रखिए कि सेकंड लॉ जो है यह भी सेकंड लॉ का ही स्टेटमेंट है. दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ओनली. एंड if it is asked that what is the statement, so statement is that what we studied earlier, that force is directly proportional to rate of change of momentum, that is the statement. But if they ask what is the mathematical form, so this is the mathematical form. If they ask how to derive it, so this is what you have to do. I hope this discussion is clear to you. Thank you very much. Happy learning. All the best.